everyone, and a good afternoon to everyone. And thank you for joining us for the third fortnightly session organized by Knowledge and Awareness Platform. I, Arika Mathur, convener, will moderate this session today. Today we have with us Mr. Sandeep Kumar, NLP Master Practitioner and Mind Coach. I welcome you, sir. And we have with us Mr. Ashish Kumar Mittal. He is the member Camp Planning Committee. I welcome you, sir, and all members who are here in this meeting. I welcome you all and I bid you a very warm welcome. So Knowledge and Awareness Mapping Platform is an initiative and knowledge alliance of CSIR NISPER, that is National Institute of Science, Communication and Policy. CAMP believes every student is blessed with a core talent and aims to bring out the best in them through this platform. CAMP is really proud to be hosting this third knowledge session of the year 2022 and announces the scholarships for this outstanding performers CAMP NASTA 2022. More details are available on our website. You can visit our website on www.camp.rs.in. तो कैंप आपके बच्चों के लिए फ्री फोर्टनाइटली सेशंस सेकेंड एंड फोर्थ थर्सडे को लेकर आ रहा है 4 PM अंडर JSC. तो आप भूलिए ना, एवरी सेकेंड एंड फोर्थ थर्सडे हर महीने आपके लिए दो बहुत ही एक्साइटिंग सेशंस लेकर आएंगे, जिसके अंदर होंगी बहुत सारी क्विजेस, पजल्स, रोबोटिक सेशंस आने वाले हैं, चैलेंजेस होंगे और इसके अंदर बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स भी होंगे. ऑफ कोर्स जब कॉम्पिटिशन्स की बात करेंगे तो प्राइजेस भी होंगे. तो बने रहिए, जरूर आइए, हमारे सारे सेशंस को अटेंड करिए. दीज आर वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. हर सेशन में पार्टिसिपेट करने से आपके अंदर की क्यूरियोसिटी को आप पहचान सकेंगे, अंदर एक हेल्दी कंपटीशन की स्पिरिट भी बनी रहेगी. तो चलिए आज का इसी नोट पे अपना सेशन शुरू करते हैं. तो क्या आप सब जानते हैं कि आज का सेशन के बारे में है और किस चीज के लिए है? जैसे कि नाम हम सबको बताता है, सीक्रेट्स ऑफ माइंड. इट इज अबाउट द मोस्ट पावरफुल एलिमेंट ऑफ अ पर्सन, व्हिच इज माइंड. तो आपको पता है कि हमारा माइंड कितना स्ट्रांग है और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो हमारा माइंड या माइंड की पावर से ज्यादा पावरफुल हो. तो आज हम आपको सीक्रेट्स ऑफ स्ट्रांग के बारे में बताने जा रहे हैं. आई होप आपको ये वर्कशॉप बहुत इंटरेस्टिंग और मजेदार लगेगी. तो हमारी वर्कशॉप तक एंड तक बने रहिए. आपके पास आपको देने के लिए बहुत सारी जानकारी है, बहुत सारे अपडेट्स हैं, बहुत सारी अनाउंसमेंट्स आपसे करनी है, आपसे बातें करनी है. तो एंड तक जरूर बने रहिए. इस वर्कशॉप के बाद एंड में हम थोड़ी सी बातें करेंगे और जरूर अपना फीडबैक देना ना भूलें. हमारे चैट बॉक्स हम आपसे एक फीडबैक का लिंक शेयर करेंगे. उस लिंक को क्लिक करके आप अपने फीडबैक्स अबाउट दिस वर्क एंड अदर वर्कशॉप आप हमें दे सकते हैं. आप हमें एक वीडियो बाइट भी बना के भेज सकते हैं. आप हमें मेल कर सकते हैं info@camp.res.in पर. आप अपना एक छोटा सा वीडियो, नॉट मोर 1.5 मिनट से ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं, उसे मेल कर सकते हैं. आज हम अपनी वर्कशॉप शुरू करते हैं. I would like to invite Mr. Sandeep Kumar, NLP Master Practitioner, Researcher on NLP Applied Fundamentals and Life Coach. He's the Mind and Memory Master Trainer with specialization in training students and parents on neuro-linguistic programming with mastery in mind mapping. He is instrumental since 2012 in helping human mind across major Indian cities to realize and magnify its talent, qualities, and living up to ultimate human. He has been delivering lectures on NLP and mind mapping for last 8 years and transforming thousands of human brains, including students, parents, teachers, professionals, and homemakers. He has been termed as final destination by his students to get rid of all the negative thoughts, unwanted habits, academic boredom or failure, lack of retention, lack of motivation, stress, and low confidence. I request Mr. Kumar to kindly address the gathering.
Okay, thank you so much. Thank you, ma'am. And first of all, I would like to thanks camp, the team. आप सभी इतना बेहतरीन काम करें। मैं एक्चुअली ये पूरा वर्कशॉप हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके कम्युनिकेट करने वाला हूँ। आई होप कि हिंदी से बच्चों को कोई इश्यू नहीं होगी। सो आई एम बेगिंग द परमिशन, अलाउ मी टू स्पीक इन हिंदी एंड इंग्लिश। सो मैं बीच बीच में कभी कभी इंग्लिश और हिंदी में बात करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर अलाउइंग मी। और यहाँ पे मैं सबसे पहले कैंप की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं स्टूडेंट्स को एक तरह से इग्नाइट करने के फील्ड में, उन्हें रिजुविनेट करने के और साथ साथ में उनको हेल्प करने के फील्ड में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने लोग मेरे साथ अग्री कर रहे हैं कि कैंप की टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, तो प्लीज काइंडली टाइप आई, एवरी चाइल्ड, आई वांट एवरी चाइल्ड हियर टू टाइप आई दैट यू एडमिटेड दैट कैंप इज डूइंग वेल विथ योरसेल्फ। तो एक बार आई टाइप करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ग्रेट ऑडियंस, नाइस ऑडियंस, ग्रेट, फैंटास्टिक, सो एक्टिव, वाओ, फैंटास्टिक, इतने सारे कमेंट, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच, सो मच, सो एनर्जेटिक। सो मैं इतने एनर्जेटिक, इतने ज्यादा जिसको कह सकते हैं परफॉर्मिंग ऑडियंस को बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगा। मैं बहुत सारे बंच ऑफ थिंग्स लेकर आया हूं आपके लिए, एंड यू विल एंजॉय लॉट। बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले मैं फटाफट से अपनी पीपीटी आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और ये पीपीटी मैं आपके साथ फटाफट से शेयर कर दूं। शेयर स्क्रीन ऑप्शन यहाँ पे है, और ये रही मेरी पीपीटी, एंड नाउ आई एम गोइंग टू शेयर दिस राइट नाउ। सो आई होप ये पीपीटी आपको बेहतर ढंग से दिखाई दे रही होगी इस वक्त। कितने लोगों को मेरी पीपीटी अच्छे से दिखाई दे रही है? टाइप आई वंस अगेन। ग्रेट, फैंटास्टिक, नाइस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ग्रेट, सो एक्टिव, ग्रेट, नाइस ऑडियंस। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल। आप सभी ने ये वर्कशॉप ज्वाइन करने का डिसीजन लिया है। अगले आधे घंटे तक मैं आपके साथ हूं, बहुत सारी चीजें मैं शेयर करने वाला हूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम वेलकमिंग यू इन माय NLP माइंड पावर एंड मेमोरी प्रोग्राम। दिस प्रोग्राम इज फॉर स्टूडेंट, पेरेंट एंड टीचर्स। बेसिकली आज मैं स्टूडेंट्स को केंद्र में रखकर, यानी कि सेंटर पॉइंट पे हमारे स्टूडेंट रहेंगे, और उन्हें मैं सेंटर पॉइंट पर रखकर आज सारी बातें करूंगा। जितने भी स्टूडेंट हैं उनको लेकर मैं बहुत सारी चीजें आया हूं। और ऐसे में सबसे पहले हमें ये जानना बहुत आवश्यक है दैट व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम स्टूडेंट्स आर फेसिंग टुडे। सबसे पहले हम सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़े, उससे पहले हम किस बात पे ध्यान देंगे? सबसे पहले कि जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं। So first of all, what are the challenges in front of all students? सबसे पहले उस पर बात करते हैं। और सबसे बड़ी और सबसे पहली चैलेंज, सबसे पहला चैलेंज क्या है? पुअर कंसंट्रेशन, मेमोरी एंड रिटेंशन। पुअर कंसंट्रेशन, जहां पे हम फोकस नहीं कर पाते चीजों को। दूसरी चीज है कि हम चीजों को मेमोराइज नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ कंसंट्रेशन। कई बार कुछ बच्चे मेहनत करके बहुत सारा, जिसको कह सकते हैं मगिंग करके, रट्टा लगा लगा के बहुत मेहनत से चीजों को याद करते हैं, लेकिन अफसोसजनक रूप से घंटे 2 घंटे के बाद चीजों को मिस कर जाते हैं, भूल जाते हैं, ऑब्सोलीट हो जाती हैं। और ये एक बहुत बड़ी समस्या है सभी स्टूडेंट के लिए। मैं अपने बचपन की बात करूं तो मैं इससे बहुत ज्यादा जूझता रहा हूं, बहुत ज्यादा मैं परेशान रहा हूं, बिकॉज मैं इस वजह से, चूंकि मेरी रिटेंशन अच्छी नहीं थी, इस वजह से मैं हमेशा एक एवरेज स्टूडेंट ही अपने आप को मानता रहा। सो ये समस्या मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ होती है, जहां पे चीजों को आप मेमोराइज नहीं कर पाते और रिटेन नहीं कर पाते, कई बार फोकस या कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पाते। आज मैं इसके रहस्य बताऊंगा और तुरंत सॉल्यूशन भी दूंगा। मैं आपको एक चीज प्रॉमिसिंगली कह सकता हूं कि इस वर्कशॉप के अंत तक आपकी 99% प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर चुके होंगे। 99% जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, स्टूडेंट हियर मी लाउडली, you will get rid of all problems you are having right now. So अगली प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, और अगली प्रॉब्लम है सब्जेक्ट डिसइंटरेस्ट एंड फियर। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्हें किसी ना किसी सब्जेक्ट से डर लगता होगा, मुझे भी लगता था। और पता है डर लगने का मतलब इतना ज्यादा डर कि केवल टीचर्स को, उस सब्जेक्ट के टीचर को देखते ही मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती थी। कई ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिसको लेकर मैं काफी डरा रहता था, और कॉन्सिक्वेंस क्या होता था? मैं उन सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता था। कई सब्जेक्ट्स अच्छे परफॉर्म कई सब्जेक्ट्स में मैं अच्छा परफॉर्म करता था, और कुछ सब्जेक्ट्स की वजह से मेरी एवरेज मार्किंग जो है वो हमेशा नीचे हो जाती थी। सो ये एक पीयर प्रेशर रहता था, लोग मुझसे आगे निकल जाते थे। सो आज इस पे भी बात करेंगे और इसके भी सॉल्यूशंस ढूंढेंगे। अगली प्रॉब्लम है एग्जाम फियर। इट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। मेरी बात ध्यान से समझो। आप एग्जाम के एक रात पहले आपने सभी चीजों को अच्छे से याद किया, मेमोराइज किया, और रिवीजन भी कर ली, सब कुछ फिक्स हो गया, बट इन द एग्जामिनेशन रूम जैसे आप एंटर करते हैं, ब्लैकआउट। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे
जिन्होंने ये सिचुएशन फेस की होगी, क्वेश्चन पेपर आया नहीं कि चीजें भूल गए, याद थी, कल तक याद था, बट अब एग्जाम रूम में याद नहीं आ रहा, और ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और सबसे पता है सबसे ज्यादा इरिटेटिंग क्या होता है, जब आप एग्जाम हॉल से बाहर आते हो और घर की तरफ जा रहे होते हो, जो चीजें आप भूल गए थे ना वो वापस याद आ रही होती हैं। कितने बच्चों के साथ ऐसी सिचुएशन होती है? काइंडली टाइप आई ऑन द कमेंट सेक्शन। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये फील होती होगी कि जब वो एग्जाम हॉल से बाहर आते हैं तो उन्हें बहुत अच्छे से चीजें याद आने लगती हैं, जबकि एग्जाम हॉल में वही चीजें याद नहीं आ रही थी। सो दिस इज कॉल्ड ब्लैकआउट कंडीशन और फाइट और फ्लाइट मोड। इसके बारे में थोड़ी सी बात मैं करने का प्रयास करूंगा, बिल्कुल बहुत बहुत कम है, और मुझे बहुत सारी चीजें आपको बतानी है, तो मैं एक एक चीज को कवर करता जाऊंगा। अगली प्रॉब्लम है एकेडमिक प्रॉब्लम। अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स होगी तो ऑब्वियसली एकेडमिक बोर्डम तो होगा ही। पढ़ने में मन ना लगना, ये बहुत कॉमन फैक्टर है, और इसकी समस्या का जड़ जो है वो समस्याएं हैं जहां पे जो इसके बारे में मैंने अभी डिस्कस किया। अगली प्रॉब्लम है कि जहां एक बच्चे को अपने लाइफ में अच्छा करने के लिए, एकेडमिक्स में परफॉर्म अच्छा करना चाहिए, वहां पे दिक्कत ये हो रही है कि वो एकेडमिक बोर्डम का शिकार हो रहे हैं, और टेलीविजन, स्मार्टफोन, वीडियो गेम्स, ऐसी चीजों से वो एडिक्टेड हो रहे हैं, उनसे वो बहुत ज्यादा, जिसको कहते हैं, अटैच हो रहे हैं, एसोसिएटेड हो रहे हैं। दिस इज अ वेरी डेंजरस थिंग फॉर एनी स्टूडेंट्स। सो ये बहुत बड़ी समस्या है, इस पे भी मैं बात करूंगा थोड़ा सा। और अगली समस्या यहाँ पे जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है, दैट इज अनवांटेड हैबिट्स एंड बिहेवियर्स। प्रोक्रेस्टिनेशन, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरह की चीजें आज बच्चों में देखी जा रही हैं। पेरेंट्स एंड टीचर्स मेरी इस बात से अग्री करेंगे, और ये एक बहुत बड़ी समस्या है ब्राइट फ्यूचर के लिए, बच्चे के ब्राइट फ्यूचर के लिए। तो इन समस्याओं को कैसे हैंडल करें, मैं इस पे बात करूंगा। और यहाँ पे मेरा ये मानना है, मेरे जो अपने एक्सपीरियंस रहे उसके आधार पे, कि अगर इन सब में इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया जाए, विच इज कॉल्ड पुअर कंसंट्रेशन, मेमोरी एंड रिटेंशन, अगर इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लिया जाए तो बाकी समस्याएं अपने आप ठीक हो जाएंगी। क्यों? एक छोटा सा फैक्टर बताता हूं। यहाँ पे जितने भी, यहाँ पे मैं देख रहा हूं तकरीबन 350-400 के आसपास स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं। एक भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो अच्छा परफॉर्म नहीं करना चाहेगा। एक भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो अपने ग्रेड्स को बेहतर नहीं करना चाहेगा। हर कोई चाहता है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक रहस्य है, एक सीक्रेट मैं बता रहा हूं। हर इंसान, हर सोसाइटी के हर सेगमेंट के लोगों के लिए एक सोशल रिकॉग्नाइज्ड वर्क है। जैसे कि होता है ना भाई, घर में अगर औरतें हैं तो उन्हें बच्चों का ख्याल रखना है, घर पे भोजन पकाना है, साथ साथ में आज बच्चे, औरतें जो है वो पैरेलल काम भी कर रही है मर्दों के साथ मिलकर, लेकिन फिर भी उनसे एक्सपेक्ट की जाती है कि वो घर का काम अच्छे से करें, बच्चों का अच्छे से देखभाल करें। वहीं मर्दों के बारे में होता है कि भाई वो बाहर जाके अच्छा अर्न करें, एक जिसको कह सकते हैं परिवार को संरक्षित और सुरक्षित करें। ऐसे ही बच्चों का एक सोशल रिकॉग्निशन वर्क है। मेरी बात ध्यान से समझना, बच्चों को सोशली रिकॉग्नाइज तभी किया जाता है जब वो पढ़ने में अच्छे होते हैं, और हम सभी की एक बेसिक हंगर होती है टू बी सिग्निफिकेंट। मेरी बात ध्यान से समझो। हर कोई चाहता है कि मैं खास बनूं अपने पीयर्स में, अपने सराउंडिंग में, अपने सोसाइटी में, फैमिली में। और ऐसे में अगर आप एकेडमिक्स में अच्छा करते हैं तो आपको शाबाशियां मिलती है, रिकॉग्निशन मिलता है। सो अगर आप पुअर कंसंट्रेशन, मेमोरी एंड रिटेंशन को आपने ठीक कर लिया, यानी एकेडमिक्स में अगर आपके परफॉर्मेंस अच्छे हो गए, तो ऑब्वियस है कि आप बाकी जितने भी आपके इल हैबिट्स या बैड हैबिट्स जिसको मैं कह सकता हूं, अगर वो आपके भीतर है तो वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। सो मेरा ये फर्मली बिलीव है कि आपको पुअर मेमोरी, कंसंट्रेशन और रिटेंशन को ठीक करना है। और आज इसी मुद्दे पे मैं पूरा फोकस करते हुए अगले 20-25 मिनट तक आपके साथ कुछ चीजें शेयर करूंगा, कुछ टेक्निक्स एंड चीजें बताऊंगा आपको। सो यहाँ पे मैं आपको जिन चीजों को, जिन टेक्निक्स के साथ रूबरू कराऊंगा, उसे कहते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, एनएलपी। बहुत सिंपल डेफिनेशन में देता हूं। न्यूरो मीन्स हमारा ब्रेन, माइंड, बॉडी एंड ब्रेन। लिंग्विस्टिक का मतलब द कम्युनिकेशन वी डू, यानी कि उसकी एक अपनी भाषा होती है जिसके जरिए हम कम्युनिकेट करते हैं या किसी चीज से एसोसिएट या डिसएसोसिएटेड होते हैं। अब यहाँ पे एक चीज है कि अगर हम किसी चीज से एसोसिएट नहीं हो पा रहे, किसी चीज से अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पा रहे, जुड़ नहीं पा रहे, तो कहीं ना कहीं हमारी जो प्रोग्रामिंग है, हमारी जो न्यूरोलॉजिकल प्रोग्रामिंग्स है, उसमें कोई गड़बड़ी है। अगर हम उसे ठीक कर लें, अगर उन पैटर्न्स को हम ठीक कर लें, तो हम बहुत अच्छे से चीजों पे कंसंट्रेशन, फोकस एंड एसोसिएटेड हो पाएंगे, एंड रिजल्ट विल बी डेफिनेटली गुड। सो एनएलपी का मैंने बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया, और यहां से आगे बढ़ूं इससे पहले छोटा सा परिचय मैं अपना देना चाहूंगा। जैसा कि आपने सुना अभी अभी, मेरा नाम संदीप कुमार है, और मैं एक एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर, माइंड, पावर एंड मेमोरी कोच हूं। लगभग साल 2012 से मैंने अपने काम को शुरू किया था, और लगभग इन 10 सालों के बीच मैंने 35,000 पीपल, नंबर रिपीटिंग, 35,000 पीपल को मैंने अपने सेमिनार, वेबिनार्स
और वर्कशॉप के जरिए ट्रेन किया है, जिसमें 15,000 से ज्यादा केवल स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स, प्रोफेसर्स हैं, जिसमें क्लास 5-6 के स्टूडेंट से लेकर पीएचडी स्कॉलर्स तक हैं। कई मेरे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े आयाम हासिल किए हैं, जिनमें से कुछ तो ऐसे भी हैं जिन्होंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड तक में अपना नाम दर्ज किया है। तो दोस्त, आगे बढ़ता हूं और आप सभी के साथ कुछ चीजों को शेयर करता हूं। और जैसा कि मैंने कहा कि पहला फोकस मेरा होगा आज के वर्कशॉप का, हाउ टू एलिमिनेट पुअर कंसंट्रेशन और हाउ टू इंक्रीज योर कंसंट्रेशन, मेमोरी एंड रिटेंशन। सो यहां पे मैं कुछ बताऊं उससे पहले एक चीज आपको और बता दूं। हमारे पास जो माइंड है, यहां मैं सीधे सीधे इस टॉपिक पे आ रहा हूं। वी हैव अ एनॉर्मस एफिशिएंट ब्रेन और माइंड। पता है इसकी जो टोटल स्टोरेज कैपेसिटी है वो कितनी है? 2.5 पीटाबाइट। 2.5 पीटाबाइट का मतलब समझते हो आप? यानी कि द होल इंफॉर्मेशन अपलोडेड ऑन इंटरनेट, अब तक जितने भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट में अपलोड किए गए हैं वो सारे के सारे आप अपने इस छोटे से मशीन में, छोटे से टूल में फीड कर सकते हैं और 100% एफिशिएंसी के साथ उसे रिकॉल कर सकते हैं। दिस इज व्हाट द मिरेकलस पावर ऑफ योर ब्रेन और माइंड। हमारा माइंड लर्निंग मशीन के नाम से जाना जाता है। और एक बात बताऊं, यहां पे मैं अभी थोड़ी देर में प्रूव कर दूंगा कि आपके माइंड के भीतर, आपके ब्रेन के भीतर और आइंस्टाइन के ब्रेन के भीतर कोई भी डिफरेंस नहीं है। द सेम ब्रेन यू हैव, द आइंस्टाइन हैड। सो यहां पे केवल फर्क यह है कि हम इस माइंड या ब्रेन का इस्तेमाल करना नहीं जानते। आज मैं उन्हीं यूजेस को आपके सामने रखूंगा और उन्हीं यूजेस की बात करूंगा। एक चीज मैं यहां पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा टीम से, ये कुछ पिंग की आवाज आ रही है, लगातार एक बेल की आवाज आ रही है। इफ यू कैन स्टॉप इट देन इट वुड बी फार बेटर, क्योंकि मैं समझता हूं कि ये बार बार लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर रही होंगी। सो काइंडली डू समथिंग टू म्यूट दिस साउंड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो लेट्स गेट प्रोसीड, यहां से आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज व्हाट द बेसिक थिंग आई शेयर्ड विथ यू। सो आज तक जितने भी बच्चे यहाँ ये मानते रहेंगे कि भाई मैं एवरेज बच्चा हूँ, मैं स्लो लर्नर हूँ, मैं थोड़ा कम सीख सकता हूँ, लोग बच्चे जो और बाकी जो पीयर्स हैं, मेरे बाकी बच्चे हैं, वो मुझसे फास्ट हैं, वो मुझसे बेहतर कर सकते हैं, दे हैव सम डिफरेंट ब्रेन और काइंड ऑफ थिंग्स। सो दिस ऑल आर मिथ्स। आज मैं तोड़ दूंगा ये, आप सभी को मैं साबित कर दूंगा कि यहाँ पे मौजूद जो भी 400-500 बच्चे हैं, सब के सब जीनियस हैं। एवरीवन इज अ जीनियस। सो ये मैं यहाँ पे साबित कर दूंगा और जाते जाते ये मैं करके जाऊंगा। सो देखते हैं कि आखिर जो मैं कह रहा हूं उसमें कितनी सच्चाई है। और यहाँ पे ये जो सच्चाई, ये जो बात मैं बता रहा हूं, इस सच्चाई के पीछे एक साइंटिफिक रिसर्च है। और इस रिसर्च के मुताबिक और ब्रेन इज एफिशिएंट टू डू न्यूरोजेनेसिस। अब ये न्यूरोजेनेसिस क्या है, बहुत छोटा सा मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। न्यूरो का मतलब होता है न्यूरॉन्स और मेमोरी सेल्स, यहाँ बहुत सारे बच्चे जानते होंगे। और जेनेसिस का मतलब होता है जनरेशंस का जन्म लेना, यानी कि नए जनरेशंस का उभर कर आ जाना। सो हमारे ब्रेन में एक एबिलिटी है कि जब भी हम किसी नए इंफॉर्मेशन को परसीव करते हैं, उसे स्टोर करने के लिए हमारा जो हिपोकैम्पस है वो इस तरह से स्टिमुलेट करता है ब्रेन को कि वो नए नए न्यूरॉन्स बना देता है उन इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। बिकॉज स्टोरेज कहां होंगी? न्यूरॉन्स में, मेमोरी सेल्स में। और ये कितने बना सकता है? आपके होल लाइफ में 100 बिलियन से भी ज्यादा, रफली काउंटेड, इसकी कोई सीमा नहीं है। 100 बिलियन। अच्छा, एक न्यूरॉन की कैपेसिटी, ये अगर इसकी बात की जाए तो 8 GB से भी ज्यादा है। आप समझ लो कि कितने डेटा एंड इंफॉर्मेशन आप स्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ पे कई सारे बच्चे बोल रहे होंगे कि साहब अगर ऐसा है तो फिर हमारे कुछ सब्जेक्ट के जो कुछ कंटेंट हैं वो हम क्यों भूल जाते हैं? इसके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये जो प्रोसेस में बता रहा हूँ इसकी एक वीडियो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। देखो इस तरह से हमारा ब्रेन जो है ना वो ग्रो करता है। Our brain grows when we learn something new. That is why I told you that our brain is a learning machine. So you have got the significant and enormously powerful brain. सभी के पास है। ये देखो इस वक्त जो वीडियो में आप देख रहे हैं, इस वक्त आप देखें ये प्रोसेस को मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तरह से ब्रेन कैसे दिखना, आप ये देखो पूरा ब्रेन कैसे डेवलप हो रहा है, कैसे ये सिंक कर रहे हैं एक दूसरे न्यूरॉन से, कैसे वो कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं। दिस कनेक्शन आर कॉल्ड, इसको कहते हैं साइनेप्सेस, साइनेप्टिकल कनेक्शंस। और ये कनेक्शंस ही हमारे मेमोरी का आधार है। देखो ये पॉइंट मैंने यहाँ रख दिए, आगे मैं जब चीजों को लर्न कराऊंगा तो उस वक्त आपको ये समझने में बहुत आसानी होगी। फटाफट से कूदते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं कि भाई क्या चीजें हैं, क्या बाधा है ऐसी जो हमें इस प्रोसेस से रोकती है। और वो बाधा है कि हमारा जो माइंड है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है दोस्तों, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस।
कॉन्शियस का काम है चीजों को परसीव करना अपने 5 सेंसेस के जरिए, और सब कॉन्शियस माइंड हमारा मेमोरी स्टोरेज है, यानी वहां पे चीजें स्टोर होती हैं। इन दोनों के अलाइनमेंट के बिना, यानी दोनों को साथ किए बिना आप किसी भी चीज को मेमोराइज नहीं कर सकते। मेमोराइज कर भी लोगे तो वो शॉर्ट टर्म में रहेंगी, लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाएंगी, यानी कि वो आपकी परमानेंट मेमोरी का हिस्सा नहीं होंगी। और ऐसा करने में कुछ चीजें हमें रोकती है, जिसके बारे में मैं बताऊंगा। और अगर हम ऐसा कर लें तो ये जो सिचुएशन है, ये जो कंडीशन, इसे कहते हैं न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट या फिर कॉन्ग्रुएंस, जिसको हम कहते हैं चरम ध्यान की अवस्था। और ये अवस्था कई सारे जीनियसेस प्राप्त कर चुके हैं, जिसमें आपने कई लोगों का नाम भी सुना होगा। विवेकानंद, जो पेज नंबर, कॉलम या पैराग्राफ, लाइंस के बाद लाइंस तक कहकर वो डिफाइन कर देते थे चीजों को बुक्स में। इसके अलावा आपने बहुत नाम सुना होगा गूगल बॉय का। आपने ये देखा होगा कि किस प्रकार वो चीजों को फटाफट मेमोराइज कर लेता है और किस प्रकार वो चीजों को रिकॉल करके बताता है। ये चीजें आप भी कर सकते हैं इफ यू कैन फिक्स दिस अलाइनमेंट व्हिच इज कॉल्ड न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट। जैसे आप ये करोगे, न्यूरोजेनेसिस प्रोसेस आपके माइंड के भीतर होगा एंड यू विल मेमोराइज एनीथिंग व्हाटएवर इट इज। मैं अभी तुरंत आपको वो करके दिखाऊंगा, तुरंत के तुरंत कॉम्प्लिकेटेड कंटेंट आपको लर्न कराऊंगा और आप उसे फटाफट से लर्न करेंगे। सो अब मैं बता रहा हूं कि ये प्रोसेस को करने में या होने में बाधक क्या है, कौन सी बाधाएं हैं। पहला है अनसाइंटिफिक मेथड ऑफ लर्निंग। वी लर्न अनसाइंटिफिकली, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। और इसका एक बहुत गलत कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि हमारा जो माइंड है वो पास्ट रेफरेंस के आधार पर डिसीजंस लेता है। तो जब हम अनसाइंटिफिक मेथड से लर्न करते हैं और चीजों को भूल जाते हैं, तो हमारे अंदर एक रेफरेंस क्रिएट होता है दैट वी आर नॉट एबल टू डू समथिंग ग्रेट। और जब भी कोई स्टूडेंट अपने अंदर ये बोलता है दैट आई एम नॉट एबल टू डू समथिंग गुड, अब उसका जो बिलीफ सिस्टम है वो नेगेटिवली प्रोग्राम हो जाता है। और जब ऐसा होता है तो उस नेगेटिव बिलीफ सिस्टम की वजह से वो आगे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। सो दिस इज व्हाट द इशू, वी हैव टू हैंडल इट। और इसके लिए करना क्या होगा, हमें साइंटिफिक मेथड सीखने होंगे। अब देखो, अनसाइंटिफिक मेथड क्या है और साइंटिफिक मेथड क्या है, मैं जस्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और यहां से मैं शुरू कर रहा हूं आपके काम की चीज, यानी कि वो टिप्स एंड टेक्निक्स जहां पे आप कॉम्प्लिकेटेड कंटेंट को भी मिनटों में याद करेंगे और लम्हों में याद की हुई चीज सदियों तक याद रखेंगे। सालों, 2 साल, 5 साल बाद भी आपसे कोई पूछेगा तो आप आंसर करोगे। आर यू रेडी टू लर्न दोस टेक्निक्स? इफ यस, देन यू कैन टाइप आई। आपकी आई चाहिए, आपकी परमिशन चाहिए मुझे। सो काइंडली टाइप आई एंड फटाफट मैं शुरू कर रहा हूं। मैं जितने ज्यादा आईज आएंगे मैं उतना जल्दी शुरू करने वाला हूं। सो फटाफट टाइप करें, हेल्प मी आउट, मुझे ये मदद करें कि आप बिल्कुल रेडी हैं। सो थैंक यू वेरी मच पार्टिसिपेंट। यहाँ पे देखो, ये अनसाइंटिफिक मेथड ऑफ लर्निंग क्या है, फटाफट से मैं बताता हूँ। मान लो थोड़ी देर के लिए अगर मैंने ये वर्ड्स आपको मेमोराइज करने को दिए, what will you do? You will use a method called rote learning method. rote learning method क्या है? You will start mugging up, रट्टा लगाना शुरू करेंगे, बैग वाटर बिल गेट्स बाइक, बैग वाटर बिल गेट्स बाइक, इस तरह से आप लर्न करना शुरू करेंगे। और यहाँ पे सभी बच्चे मुझसे अग्री करेंगे, ये जो रोट लर्निंग मेथड है, यानी रट्टा लगा लगा के याद करने के लिए जो विधि है, कितने लोग इस तरह से याद करते हुए मजा लेते हैं और कितने लोग दुखी होते हैं, या कितने लोगों को परेशानी या पेन होता है, या कहें तो इरिटेशन होता है। कितने लोग मुझसे सहमत हैं कि पेन होता है? टाइप आई। ग्रेट ग्रेट, यस यस, आई नो दैट, आई सफर्ड विद दैट काइंड ऑफ थिंग्स। यस यस, एब्सोल्युटली। सो आज इससे बिल्कुल देखो, मेरी जो कंपनी है ना, उसका नाम है रिडेंस, यानी गेट रिड ऑफ एनी प्रॉब्लम। सो आज मैं आपको इससे पूरी तरह से गेट रिड कराऊंगा, इससे मैं एलिमिनेट करूंगा। अब देखो, यहाँ पे साइंटिफिक मेथड से लर्न नहीं करने से होता यह है कि वी फील पेन, और जब भी हम पेन को फील करते हैं, आवर सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड विल बी एब्सकॉन्डेड, और उसे आप रोक नहीं सकते। इस वक्त मेरी बातों को सुनते हुए आप में से कई लोग पेरिस घूम के आ सकते हैं। अभी अभी कितनों के चेहरे, मन के भीतर, यानी उनके अनकॉन्शियस माइंड के भीतर आईफिल टावर की तस्वीर भी बन गई। कितने बच्चे यहाँ पे अभी मेरे साथ बात करते करते, इंटरेक्ट करते करते अपने शहर के किसी भी मॉल से घूम के आ सकते हैं। यू कैनॉट स्टॉप योर माइंड, एक्चुअली सबकॉन्शियस माइंड। और ये तब होता है जब आप किसी सिचुएशन में पेनफुल फील करते हो, बिकॉज आवर माइंड इज डिजाइन टू अवॉइड पेन्स, सिंपल। सो ऐसे में आपका एकेडमिक से एसोसिएशन नहीं होगा। आपको करना क्या होगा, मेथड बदलने होंगे। बदलते हैं और सीखना शुरू करते हैं। कंधे सीधे कर लेना और फटाफट से इन वर्ड्स को मैं याद कराऊंगा आपको। और यहां पे मैं आपको बताऊं, आपको मैं ये वर्ड्स याद कराऊंगा और फिर रिकॉल कराऊंगा। रिकॉल करते वक्त मैं आपको अनम्यूट करूंगा और उस वक्त आपको एक एक करके वर्ड्स रिकॉल करने हैं और मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, अदरवाइज क्योटिक हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे हो, अगर एंजॉय करना है तो मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। ओके बच्चों, आई एम रिक्वेस्टिंग विथ यू। सो
पहले याद करते हैं फटाफट फटाफट। ओके, सो इसके लिए करना क्या होगा, यू हैव टू स्ट्रेटन योर स्पाइन, अपने कंधे को सीधे कर लो और एक बार गहरी सांस ले लो और शुरू करते हैं याद करना, जैसा मैं कहूं वैसा करते जाना, फॉलो करना। ओके, 100% रिजल्ट चाहिए तो मुझे मेरे कमांड को फॉलो करना। मैं इसे मजेदार बनाने का प्रयास करूंगा ताकि आप बिल्कुल से कॉन्सेंट्रेट कर पाए। शुरू करते हैं फटाफट से। सो पहला वर्ड है बैग। And now what you have to do, just you have to imagine that you have got a bag. आपके हाथ में एक बैग है, इमेजिन करो, और मैंने इसको डिलीट कर दिया। इमेजिन करो आपके हाथ में एक बैग है ब्लैक कलर का। अब अगला वर्ड है वाटर। सो इमेजिन करो आपने उस बैग के जिप को खोला, एक जूम की आवाज आई और उसमें ढेर सारा वाटर डालने लगे आप। बैग में पूरा वाटर फिल कर लिया आपने, इमेजिन करो। अब अगला वर्ड है बिल गेट्स। अब क्या करने वाले हैं, उस वाटर को आपने बिल गेट्स के ऊपर डाल दिया। इमेजिन करो आपके सामने बिल गेट्स खड़ा है और आप उस वाटर को बिल गेट्स के ऊपर डाल रहे हैं और बिल गेट्स पूरी तरह से भीग चुका है। अगला वर्ड है बाइक। इमेजिन करो बिल गेट्स भागता हुआ एक बाइक की तरफ गया जो कि सामने खड़ी थी और उसने बाइक स्टार्ट करी और वो भाग रहा था, तभी आप भाग कर उसके पीछे बैठ गए बाइक पे। इमेजिन करो बाइक, और बाइक चलती हुई जा रही है। और अगला वर्ड है माउंटेन। सो इमेजिन करो, जस्ट यू हैव टू फॉलो माय कमांड। इमेजिन करो कि वो बाइक आपको कहां लेके जा रही है, एक माउंटेन के ऊपर। इमेजिन करो एक ग्रे कलर का माउंटेन और आप उसके ऊपर जा रहे हो, हरियाली है, चारों तरफ पेड़ है। आगे आप पहुंचे माउंटेन पे और माउंटेन के टॉप पे जैसे ही आप पहुंच गए, अब इमेजिन करो वहां पे एक कैट है जो आपको वेलकम कर रही है। सो वो कैट आपसे हैंडशेक करके आपको वेलकम कर रही है, इमेजिन करना है। सो कैट से आप मिल ही रहे थे, तभी आपका पांव फिसला और आप गिरे कहां पे, एक रिवर के अंदर। इमेजिन करो कि आप रिवर में गिर गए, छपाक की आवाज आई और आप डूब रहे हो। स्विम करो, फटाफट से हाथ पांव चलाओ, आप स्विम करते हुए किनारे पे गए। अगला वर्ड है सलमान। इमेजिन करो किनारे पे आपको कौन मिला, सलमान। इमेजिन करो कि सलमान आपको मिला। डू नॉट राइट द वर्ड्स प्लीज, लिखना नहीं है आपको, आपको मैं जो कह रहा हूं केवल इमेजिन करना है। सो सलमान आपसे मिला, ठीक है, और सलमान ने आपको खाने को दिए कुछ ग्रेप्स, हरे हरे ग्रेप्स, इमेजिन करो आपके हाथों में। और अब देखो कि ठीक आपके बगल में एक कैमल खड़ा है, एक ऊंट। उस कैमल को आपने कुछ ग्रेप्स खिला दिए और वो कैमल काफी खुश हो गया और खुश होकर आपको अपनी पीठ पे बिठा लिया उसने। और अब आप कैमल की सवारी करते हुए कहां गए, एक ट्रेन के अंदर। सो इमेजिन दैट यू आर एंटरिंग इन अ ट्रेन विद द कैमल। आप कैमल के साथ ट्रेन के अंदर एंटर कर रहे हो और वो ट्रेन छुक 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 करती हुई कहां पहुंच गई। अगला वर्ड है हॉस्पिटल। सो इमेजिन दैट यू रीच एट अ हॉस्पिटल। एक हॉस्पिटल में चले गए आप, बड़ा सा एक ग्रीन कलर का हॉस्पिटल है जिसमें बड़ा सा क्रॉस मार्क बना हुआ है, इमेजिन करो। और जैसे ही आप हॉस्पिटल में एंटर करते हो, यू गॉट अ माजा बॉटल टू ड्रिंक। आपको वहां पे एक माजा का बॉटल दिया गया, टेस्ट इट, वेरी टेस्टी। सो अब माजा पी रहे हो, लेकिन तभी अगला शब्द है अजय। वहां पे कौन पहुंचा, कौन आया आपके सामने, अजय देवगन। सो अजय देवगन आया और आपने उन्हें देखते ही उनको गले लगाया और उनको थोड़ा माजा पिलाया। वो बहुत खुश हो गया, वो अब लेकर आपको कहां जा रहा है, अगला वर्ड एरोप्लेन। सो इमेजिन दैट कि अजय देवगन आपको एरोप्लेन के अंदर लेके जा रहा है, एरोप्लेन। सो आपने विंडो सीट पकड़ा और विंडो सीट पे बैठ गया। इमेजिन करना है आपने विंडो सीट पर बैठकर आप अपने शहर का चक्कर लगा रहे हैं एरोप्लेन में। तभी एरोप्लेन में कुछ खराबी आई और वो जाकर कहां पे लैंड कर रहा है, एक गार्डन में। सो वर्ड वाज गार्डन। एक गार्डन में लैंड कर रहा है एरोप्लेन। इमेजिन करो एक गार्डन बड़ा सा, और गार्डन में बहुत सारे पेड़ हैं। अब अगला वर्ड है मैगी। इमेजिन करो गार्डन में जितने भी पेड़ हैं, किसी में भी पत्ते नहीं है, सब में मैगियां लटकी हुई है, गर्मा गर्म दिखाई दे रही हैं। अब देखो आपको बहुत भूख लगी, आप मैगी खाना शुरू कर दो फटाफट से। वो पेड़ से तोड़ तोड़ कर आप मैगी खा रहे हैं, और चूंकि आपका पेट भर गया तो अब थोड़े से मैगी आपने कहां रख लिए, अपने शर्ट की जेब में। इमेजिन करो आपने एक शर्ट पहना है और उसकी जेब में आपने मैगी रख ली है। अब शर्ट, उसी गंदे शर्ट को पहनकर जिसमें आपने, जिसको आपने गंदा किया था अभी भी, उसी गंदे शर्ट को पहनकर इमेजिन करो कि आप अपने स्कूल जा रहे हो। स्कूल जा रहे हो, अपने स्कूल बिल्डिंग को इमेजिन करो। और जैसे ही स्कूल पहुंचे आप, आपने क्या देखा, स्कूल के अंदर हर एक क्लासरूम में मंकी, इधर उधर हर तरफ मंकी, ग्राउंड में, क्लासरूम में, हर जगह मंकी। अब देखो ये मैंने एक पैटर्न से आपको चीजों को मेमोराइज कराया। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहाँ टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी को अनम्यूट करने का एक यहाँ से ये मिल जाए, परमिशन मिल जाए, और आप सभी लोग अनम्यूट करेंगे अपने आप को सबसे पहले। दूसरी चीज, आप तब तक कोई बात नहीं बोलेंगे या किसी शब्द को रिकॉल नहीं करेंगे जब तक मैं आपको ना बोलूं। मैं एक एक करके बोलूंगा, जैसे कि मैं बोलूंगा पहला शब्द क्या था तो आपने पहला बोलना है, फिर बोलूंगा नेक्स्ट तो फिर दूसरा बोलना है, फिर नेक्स्ट बोलूंगा तो उसका अगला बोलना है।
ओके और रिकॉल करते हुए आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं और जो स्टोरी मैंने आपको बताई, जिस मूवी को मैंने दिखाया, उसे केवल रिकॉल करना है आपने क्या क्या किया था। ओके सो गेट रेडी, स्पाइन को सीधा करो एंड आई रिक्वेस्ट टू द टीम काइंडली बच्चों को आप अनम्यूट करने का परमिशन दें ताकि वो चीजों को रिकॉल कर पाए। सो सभी बच्चे, जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं, काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ और याद रखना पीछे से chaos मत करना। ओके थैंक यू। तो एक एक करके रिकॉल करेंगे, एक करके रिकॉल करेंगे। पहला वर्ड क्या था? पहला वर्ड क्या था? दूसरा वर्ड तीसरा Now mute yourself. Now mute yourself. अपने आप को आप म्यूट करेंगे और साथ साथ में एक काम और करेंगे अपने लिए। सभी बच्चे Sir, you're on mute. Sir, you are mute. Sir, you are unmute. Okay, unmuted. Okay. Now you can listen me. मेरी वॉइस आ रही है? अब आप एक काम करेंगे, अब जितने भी लोग हैं, सब लोग इतना बढ़िया काम किया आप लोगों ने, इतने अच्छे से चीजों को रिकॉल किया। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, पता है आपको एक बार अपने लिए ताली बजानी है। अब तक आप दूसरों के लिए ताली बजा रहे थे, आज एक बार अपने लिए ताली बजाओ। यू डिड अ ग्रेट जॉब एवरी चाइल्ड, ग्रेट, फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नाउ व्हाट वी डिड, यू नो, हमने क्या किया, ये न्यूरोजेनेसिस प्रोसेस को हमने पूरा किया। वी बिल्ड फ्यू न्यूरॉन्स इन आवर ब्रेन and we connected it with synaptical connection। और ऐसा करके हमने क्या किया, एक पूरा पैटर्न बना दिया, एक पूरा पाथवे बना दिया, न्यूरल पाथवे जिसको कहते हैं, which are the basis of our memory। और इस तरह से जो आपने अभी याद किया ना, पता है कितने समय तक आप याद रख सकते हो? लाइफ टाइम, लाइफ लॉन्ग, कभी नहीं भूलेंगे आप। आज के बाद ट्राई करके देखना इसे फिर से, और इतना बढ़िया तरह से आपने याद कर लिया है कि अब आपको अनम्यूट नहीं करना है, आप अपने अपनी जगह पे इसे याद करेंगे, रिकॉल करेंगे उल्टा, जस्ट उल्टा, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ओके सो द लास्ट का वर्ड क्या था? मंकी। सो कम ऑन, एक एक करके आप अपने मन में रिकॉल करो और मैं ठीक 2-2 सेकंड के बाद मैं वर्ड सामने रख रहा हूं। मंकी के पहले क्या था? ओके स्कूल के पहले क्या था? ग्रेट शर्ट, उसके पहले क्या था? एक एक करके आप रिकॉल करते जाओ। शर्ट के पहले क्या था? मैगी के पहले क्या था? आप कर पा रहे हो? अगर आसपास पेरेंट्स हैं, काइंडली देखिए आप अपने बच्चे को कि क्या वो उल्टा रिकॉल कर पा रहे हैं। आई रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स। सो यहाँ पे मैगी से पहले क्या था? ग्रेट। गार्डन से पहले क्या था? मैं जानता हूं कि आप बहुत फास्ट रिकॉल कर पा रहे हैं। एग्जैक्टली। एरोप्लेन से पहले क्या था? रिकॉल करो फटाफट। अजय देवगन। ओके अजय देवगन से पहले क्या था? ग्रेट, फैंटास्टिक। मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स देख पा रहा हूँ और मुझे बहुत मजा आ रहा है, बच्चे बहुत अच्छे। माजा के पहले क्या था? माजा आपको यस, ग्रेट, फैंटास्टिक। हॉस्पिटल आप किस चीज से गए थे? ओके ग्रेट, फैंटास्टिक। मेरे पूछने से पहले जवाब आ जाता है। तो ट्रेन के पहले क्या था?
Great, fantastic. Camel, yes, I can hear the voice of your mind. So camel से पहले क्या था? Yes, absolutely. Grapes, grapes से पहले क्या था? आप अपनी जगह पे रिकॉल करते रहे. Grapes से पहले क्या था? Exactly, fantabulous, fantastic. So उससे पहले सलमान से पहले, yes, of course. You remember that? सलमान से पहले, सलमान आपको कहाँ मिला था? उस चीज को याद करें. And you will get the answer. Yes, absolutely. River. River से पहले क्या था? River के पहले, absolutely correct. Cat. Cat से पहले, cat से पहले, yes, mountain. Mountain से पहले, mountain से पहले, recall it. Mountain. Mountain कैसे गए थे आप? Exactly. Bike पे. Bike से पहले क्या था? Recall करो. Yes, Bill Gates. Bill Gates से पहले क्या था? Yes, water. Water के पहले सबसे लास्ट वर्ड. ग्रेट. अपने लिए एक बार फिर से ताली बजाएं अपनी अपनी जगह से. ग्रेट. सो फिनोमिनल एक्सपीरियंस. हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द फिनोमिनल एक्सपीरियंस? टाइप आई. कितने लोग हैं यहाँ पे जिन्हें ये लगता है कि आज से पहले ऐसा वो संभव सोच भी नहीं सकते थे जैसा उन्होंने आज अनुभव किया है? काइंडली टाइप आई. ग्रेट, फैंटास्टिक. सो एक बार कैंप के लिए थैंक्स बनता है, थैंक बनता है कैंप के लिए, और एक क्लैप बनता है. तो काइंडली सभी लोग इमोजी टाइप करेंगे, क्लैप करेंगे कैंप के लिए, क्लैप करेंगे कैंप के लिए. कैंप ने इतना अच्छा ऑर्गेनाइज किया, सो उसके लिए. अब देखो यहाँ पे कई ऐसे बच्चे होंगे जो सीनियर फेलोज होंगे, यानी कि जो ऊंचे क्लासेस में होंगे, क्लास 4, 5, 6 के बाद के बच्चे हो सकता है यहाँ पे. तो अब यहाँ पे एक सवाल आ सकता है कि भाई ये तो कुछ वर्ड्स थे आपने याद करा दिए, और ये जो मैंने टेक्निक आपको बताई ये टेक्निक थी माइंड मैपिंग की, लिंक मेथड. सो द पावरफुल टेक्निक लिंक मेथड मैंने यूज किया और कुछ वर्ड्स आपको याद करा दिया. अब कई लोगों के जहन में, कई पेरेंट्स के जहन में या टीचर्स के जहन में ये सवाल होगा कि हमारे जो रियल कंटेंट है, यानी जो हमारा सिलेबस कंटेंट है, उसे हम कैसे याद करें. फटाफट से एक कंटेंट याद कराता हूं और वर्कशॉप को मैं एंड करूंगा क्योंकि टाइम मुझे बहुत कम दिया गया है. आई हैव टेकन ऑलरेडी फ्यू मोर टाइम्स. सो यहाँ पे एक कंटेंट में, हाइपोथेटिकल कंटेंट में आपके लिए लेकर आया हूं. एक बार सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार कंधे सीधे करना, और यहाँ पे हम याद करने वाले हैं एक हाइपोथेटिकल कंटेंट जो कि आपके सिलेबस से मिलता जुलता होगा. आई एम नॉट गोना फीड यू विथ स्पून. मैं आपको मास्टर टेक्निक बता रहा हूं, ठीक से सीख लो. आपके बहुत सारे पैटर्न्स को याद करने में, बहुत सारे कंटेंट को याद करने में काम आएगी. सो यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड एक हाइपोथेटिकल कंटेंट है जिसको मैंने जस्ट ऐसे ही बना रखा है आपके लिए. अब यहाँ पे इसका आंसर, इट इज यूज्ड इन मेकिंग कार्बोनेट सोडियम, मैग्नीशियम, आर्गन, फ्लोरीन, बॉक्साइट, ऑक्सीजन, पोलोनियम, कोबाल्ट एंड क्लोरीन. इस तरह से सवाल आते हैं, यस और नो, ऑब्वियसली. अब इनको कैसे हम याद करें, फटाफट लर्न करना सीखते हैं फटाफट से, और एक बार गहरी सांस ले लेना. लेकिन इसको लर्न करने से पहले एक बात मैं बता दूं आपको ऐसे अननोन कंटेंट क्यों नहीं लर्न होते? बिकॉज सम कॉन्जेनिटल फियर्स. कॉन्जेनिटल मतलब जन्म से कुछ डर होते हैं हमारे अंदर. एक तो फियर ऑफ फॉलिंग होता है, गिरने का डर. दूसरा होता है फियर ऑफ साउंड, तेज आवाज का डर. उसी तरह एक जन्मजात फियर होता है फियर ऑफ अननोन. और ये जो फियर ऑफ अननोन है ना, ये सबसे ज्यादा परेशान करता है कंटेंट लर्न करने में. जैसे आप अनजान लोगों से, अनजान सड़क पे, अनजान घरों में जाने से डरते हैं, उसी तरह अनजान कंटेंट से आपका सबकॉन्शियस माइंड डरता है. आपका माइंड का जो एक हिस्सा है वो डरता है, और जो कि आपका स्टोरेज है. ऐसे में जब भी कोई अननोन कंटेंट आएगा ना, तो आपका माइंड जो है अपने दरवाजे बंद कर लेता है. इस चीज को समझो आप. ये जितने भी कंटेंट है इसमें मैक्सिमम जो है ना अननोन चीजें होती हैं. पहली बार हम उसको देख रहे होते हैं, ऐसे में वो चीजें हमें याद नहीं होती. अब यहाँ पे इसे एक एग्जांपल से समझो. मान लो आपके घर में कोई आदमी आया और उसने बेल बजाया. बेल बजते ही दरवाजा खोल देते हो आप, या उससे सवाल करोगे कौन हो, कहां से आए हो, क्या काम है, पूछते हो ना. सो आप क्या करते हो, एक अननोन पर्सन को नोन बनाते हो, और तब जाकर आप अपना दरवाजा खोलते हो. पहले इंट्रोडक्शन हुआ, फिर आपने दरवाजा खोला. ठीक इसी तरह माइंड भी जब इंट्रोडक्शन होगा तभी दरवाजा खोलेगा. इंट्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या करेगा, वो अपने दरवाजे को बंद कर लेगा, खोलेगा नहीं. और इसीलिए आपको चीजें याद नहीं होती. अब देखो, इंट्रोडक्शन कराने के लिए हम करते क्या है, अननोन को नोन बनाने के लिए क्या करते हैं, रट्टा लगाते हैं, रिपीटेशन करते हैं ना, मगिंग करते हैं. और इसका नुकसान ये होता है कि उससे माइंड इरिटेट होता है. क्यों होता है, इसी एग्जांपल से समझाता हूं. मान लो जो घर के दरवाजे के बाहर इंसान था जिसने बेल बजाया था, आप उससे जब उसका इंट्रोडक्शन पूछते हो, वो इंट्रोडक्शन नहीं बता रहा अपना. वो क्या करता है, हर बार बेल को डबल कर देता है. यानी पहली बार उसने टिंग टोंग किया तो अगली बार टिंग टोंग कर रहा है, अगली बार 2 बार 4 बार बेल बजाता है, फिर अगली बार 8 बार बेल बजाता है. ऐसे करेगा तो घर के अंदर आपको इरिटेशन होगी कि नहीं होगी, यस और नो? ऑब्वियसली होगी. उसका इंट्रोडक्शन प्रॉपर वो देगा तभी तो आप दरवाजा खोलेंगे.
सो यही हमारे माइंड के साथ होता है। हमें क्या करना है, इन कंटेंट्स को नोन बनाना है। ध्यान से समझना इस टेक्निक को जो मैं अब बताने जा रहा हूं। सभी बच्चे, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, एक बार कंधे सीधे करना और जो मैं कह रहा हूं उसे ध्यान से समझना। अब यहां देखो, ये जो लाइन है यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड, इसमें कौन सा ऐसा वर्ड है जो नहीं याद होगा? नाइट्रिक एसिड ऑब्वियसली। और इट इज यूज्ड इन मेकिंग सम दोज वर्क्स, ये याद नहीं होंगे, दोज वर्ड्स याद नहीं होंगे। अब इसको करना क्या है, इन्हें नोन बनाना। फटाफट सीखते हैं, जल्दी जल्दी। अब देखो ये नाइट्रिक एसिड अननोन है, नोन कैसे बनाए? जस्ट यू हैव टू सी, उस वर्ड को देखना है और अपने क्रिएटिव माइंड से पूछना है, आर यू हैविंग सम ऑफ एनी वर्ड्स विच आर जस्ट मैचिंग विद दिस वर्ड? ऐसा करोगे तो आपके माइंड के भीतर से आवाज आएगी। मैंने पूछा तो मेरे माइंड के अंदर से आवाज आई कि ये वर्ड जो है ना वो नाई से मिलता है, जो बाल काटता है मेरा। और ट्रिक, नाई ट्रिक हो गया ना, मेरा जो नाई है वो कुछ मैजिक करता है, ट्रिक करता रहता है। सो नाई ट्रिक मुझे अब याद रह जाएगा। अब देखो यहाँ पे है कार्बोनेट, ध्यान से समझना। कार्बोनेट के गौर से देखो तो आपको ये कार्बोनेट दिख रहा होगा, लेकिन मुझे ये कार का बोनेट दिखता है। सो हर कोई कार के बोनेट से अच्छे से जान पहचान है उनकी। मैंने क्या किया, इस वर्ड को कार के बोनेट से एसोसिएट कर दिया। सो अब आपको कार्बोनेट याद रह जाएगा। अब देखो अगला वर्ड, ध्यान से सुनना। सोडियम सोडा से मिलता है, तो हमें सोडा के साथ इसे एसोसिएट कर लेना है। सिंपल, एक छोटा सा क्लू, सोडा याद आते ही सोडियम याद आ जाएगा। अगला है मैग्नीशियम, करना क्या है, मैगी के साथ इसे एसोसिएट कर लो। सो मैग्नीशियम, मैगी एक तरह का दिखता है और सुनने को भी आता है, तो मैगी के साथ एसोसिएट कर लिया तो अब ये वर्ड नहीं भूलोगे। और देखना कितना कमाल, आप कितनी आसानी से याद रखोगे और लंबे समय तक। अब देखो आर्गन है, तो इसको एयरगन के साथ एसोसिएट कर लो। एयरगन तो बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, एयरगन आर्गन एक जैसा है। फ्लोरिन को फ्लोर के साथ कर लो, बस छोटा सा क्लू, फ्लोर हो गया, फ्लोरिन याद रह जाएगा। बॉक्साइड को बॉक्स टाइट, एक बॉक्स है जो टाइट खुलता है, इमेजिन करो, बॉक्साइड याद रह जाएगा। अगला है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को आप एक ऑक्स, बैल को आप जेन कार चलाता हुआ इमेजिन करो, ऑक्सीजन याद रह जाएगा। अगला है पोलोनियम। अब ये पोलोनियम को याद करने के लिए क्या करना, you can learn those kind of techniques। आप ये कर सकते हैं, enormously fantabulous। और इसी पर्पस के साथ मैं अपनी कंपनी मैंने फॉर्म की है, जिसमें मैं एक बहुत अच्छा प्रोग्राम चलाता हूँ, इसको SDP, स्टूडेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। और स्टूडेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में मैं क्या क्या करता हूँ, मैं और मेरी टीम मिलकर, मेरी टीम में प्रोमिनेंट टीचर्स हैं, इंडिया के बेस्ट टीचर्स हैं, फिजिक्स, मैथ, बायोलॉजी, केमिस्ट्री के, जो आपको इनकी रिकॉर्डिंग सेशंस आपको मिलती हैं चैप्टर वाइज, क्लास 5 से लेकर एकदम से 12 तक के। इसके अलावा लाइव इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं जहां डाउट क्लैरिफिकेशन होती है, जहां पे आप इंटरेक्ट कर सकते हैं उन टीचर्स के साथ अपने डाउट्स को लेकर चैप्टर वाइज। इसके अलावा इंटरेक्टिव सेशंस मेरी होती हैं पर्सनली मेंटल एबिलिटी एनहांसमेंट पे, जहां पे आप केवल इन चीजों को नहीं, अपने बिलीफ सिस्टम को कैसे चेंज करें, गोल सेटिंग कैसे करें, बाकी चीजों को कैसे, अचीवमेंट कैसे हासिल करें, उस पर बात करता हूं मैं, और बहुत सारे टेक्निक सिखाता हूं। और वहां पे आप डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं, मेरे रिकॉर्डिंग सेशन मिलते हैं आपको। इसके अलावा एक और बेहतरीन चीज मैं प्रोवाइड करता हूं, जिसका इफेक्टिव पेरेंटिंग प्रोग्राम, क्योंकि मैं ये फर्मली बिलीव करता हूं कि टीचर्स एक साथ 40-50 बच्चों को पढ़ाते हैं, दे आर ऑलरेडी बर्डन। अगर पेरेंट्स अच्छे से कोप अप ना करें बच्चे के साथ, अगर उनमें कोई कमी रह जाए तो बच्चे की डेवलपमेंट रुक जाती है। इसीलिए इन कोर्सेज के साथ मैं इफेक्टिव पेरेंटिंग प्रोग्राम्स भी कराता हूं, जिसमें रिकॉर्डेड सेशन और लाइव लेक्चर्स होते हैं। ये सभी चीजों को, आप में से कितने लोग हैं जो ऐसा चाहेंगे कि आपको साल भर ऐसी गाइडेंस मिलती रहे? एक बार टाइप करो तो आई। कितने यहाँ पे बच्चे हैं जो चाहेंगे कि, या पेरेंट्स हैं जो चाहेंगे कि उनके बच्चों को एक साल तक ऐसी चीजें मिलती रहे? सो आप अगर ऐसा मानते हैं कि मेरी जो टेक्निक्स हैं, मेरी जो स्किल्स हैं, या मेरी जो टीम, जो स्किल्ड टीम है, एक्सपर्ट्स हैं, उनकी हेल्प से आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे, मैंने कहा था लास्ट में, आई हैव एन अनाउंसमेंट, ग्रेट अनाउंसमेंट। आप सभी जितने लोग कैंप के साथ रजिस्टर्ड हैं, जितने भी कैंप के रजिस्टर्ड बच्चे हैं, वो कैंप के थ्रू अगर हम तक पहुंचते हैं, मेरी टीम तक पहुंचते हैं, दे विल गेट 20% डिस्काउंट ऑन फीस।
सो जो भी हमारी फीस है, जो कि लगभग आप मान के चलो कि एक 12-15 हजार से लेके 40,000 तक की फीस है अलग अलग कोर्सेज के लिए, वहां आपको यू विल गेट 20% डिस्काउंट, ह्यूज डिस्काउंट। सो आपने करना क्या है, अगर आप मुझ तक पहुंचना चाहते हैं तो एक बार कैंप का थैंक्स करते हुए आप उनके टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके कस्टमर केयर पे आप कॉल कर सकते हैं और मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। सो उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत फ्रूटफुल रहा होगा। मैं संदीप कुमार यहाँ पे आप सभी से विदा लूंगा और ये कहते हुए कि many thanks, you made my day, you all children deserves a big clap from my side. You great champions are here, you're gonna change the world, you have got so many talents. So guys, thank you very much, thumbs up for you and a big clap. Love you all. So यहाँ पे अगर किसी के मन में कोई सवाल हो और अगर टीम की परमिशन होगी तो मैं शायद ले लूंगा। मैंने थोड़ा ज्यादा ले लिया, प्रॉब्ली 10-15 मिनट का ज्यादा वक्त ले लिया मैंने। So over to the team. Thank you, Sandeep ji. Thank you so much for guiding our students here. I'm sure आज का जो सेशन था वो हम सभी के लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही शॉकिंग और बड़ा ही नॉलेजेबल भी था। इससे हमें कई सारे इंसाइट्स मिले। आई एम श्योर हमारे यहाँ जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, हमारे जितने भी बच्चे हैं, उनको अब आगे से मगिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अपनी माइंड की पावर को यूज करते हुए सारे कॉन्सेप्ट्स को याद रखेंगे, ज्यादा टाइम तक उसको रिटेन करेंगे और अच्छे स्कोर्स और अच्छे परसेंटेज के साथ वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। तो इसी के साथ अगर आप लोगों के कोई सवाल हैं, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, इफ यू वांट टू पुट अप सम क्वेश्चन टू मिस्टर संदीप सर, देन यू कैन रेज योर हैंड एंड आई विल टेक वन बाय वन। I'll unmute you and आप unmute करके अपना क्वेश्चन उनसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। संदीप सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज स्क्रीन शेयरिंग एक बार ऑफ कर दीजिए। हटा दूं, बिल्कुल सर जी। तो सर पहले है सहाना। सहाना आप अनम्यूट कर सकते हो बच्चे। मैम, यस यू आर ऑडिबल। Ma'am, actually, I did not even understand anything because I don't know Hindi. Oh, I'm so sorry. Okay. Oh, Sahana, I'm really sorry, but then you can connect with our team and we will let you know what has happened in this entire session. We will get it translated for you. So don't worry, Sahana. Thank you, ma'am. We have Kritika here. Ma'am, I have another doubt, ma'am. Yeah. Ma'am, I'm just talking about the Camp NASTA exam, ma'am. Last year you have cancelled it, but for last year I have paid and registered for it. So my school said that I'll be participating this year. So for this year, will I be participating in 6th standard? That is the previous year I was in 6th standard or 7th standard? The current standard. 7th standard. Current standard. You are in 7th standard right now? Yes, ma'am. Then you will appear for 7th standard. I am already registered for that, isn't it, ma'am? Yes, you are already registered. Your class has been changed. You have been promoted. Still log in and check. If it is not promoted, please call back on our support number. We'll get you. How do I know, ma'am? How do I know if I am promoted? Sana, you need to log into your student panel. When you go and log in on camp.res.in, you will see your class updated there under your profile section. If it is 7, then you are good to go. If it is not, then you can call back or send us a mail. Okay, ma'am. Thank you so much. Kritika, you have any question which you want to ask, sir? Ma'am, what about the next session? The next session is going to be here I'll just give you the date. It is next Thursday. We will come back with the next session. So it is 9th of June. Okay. Ritvik, you want to ask something to sir? Yes, ma'am. Yeah. Excuse me, sir. I had a question that here you have learned us the easy words, but I have to learn the question
answered. So how Great. to learn the question answer easily? Yes, great question. बेटा आप एक चीज ध्यान से समझो, जस्ट लिसन टू मी केयरफुली. क्वेश्चंस के मैक्सिमम चीज, जैसे मैंने यहाँ पे आंसर बताया, इट इज यूज्ड इन मेकिंग कार्बोनेट, मैग्नीशियम, ये जो मैंने चीजें बताया. अब होता ही है कि क्वेश्चंस भी ऐसे ही होते हैं, उसमें कुछ हैं जो सेंटेंसेस को बनाने के लिए मान लेते हैं एडजेक्टिव्स हैं और बाकी चीजें हैं, वो तो आप खुद से कर लेंगे. जो मेन वर्ड्स हैं, रिप्रेजेंटेशनल वर्ड्स, वो याद नहीं रहते. एकेडमिक वर्ड में हमें जवाब देना पड़ता है और वो हमें याद नहीं रहते. सो हर चैप्टर में आपको 10 to 20% ऐसे कंटेंट मिलेंगे जो आप रिकॉल नहीं कर पाते, जो कॉम्प्लिकेटेड है. जस्ट फर्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट दैट एंड देन यू हैव टू मेमोराइज इट, देन प्लेस इट इन योर माइंड एज आई. ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया. तो इस तरह से आप देखेंगे कि आप मैक्सिमम बहुत बड़े क्वेश्चंस को अगर याद करें तो उसमें और भी कुछ टेक्निक्स उसमें इंक्लूड होती हैं. जैसे नंबर्स याद करना है तो न्यूमेरिक बेस सिस्टम आपको सीखना पड़ेगा और बहुत सारी चीजें हैं मिलकर एक्यूमुलेटिव एक, जिसको जब कहते हैं ना, एक टेक्निक होती है. तब जाकर आप, जैसे पेज नंबर, पैरा क्या है, लाइन कौन सी है, उसमें कौन सा वर्ड, तो इस तरह से फिर आप याद करना सीखते हैं. इट नीड्स प्रैक्टिस एंड अ प्रिसाइज, जिसको कह सकते हैं गाइडलाइन, है ना. Okay. ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग क्वेश्चन. ग्रेट क्वेश्चन, थैंक यू सो मच. थैंक यू. Thank you, Ritvik. Thank you so much, Sandeep sir. Thank you. I can see that there are lots of hands up. Yes. So what you can do, children, we have shared one feedback link in the chat box. You can put up your questions and we will put it forward to you, sir, and probably we will get the answers and then we will get back to you with the answers of your questions. So 100%. don't worry. And also share the feedback of your of the workshop. I hope you have enjoyed this workshop. I can see there were a lot of active members here. Children were constantly answering the questions asked by sir. So they were active. They could learn the sequence of the stories, forward and backward both. So it was really interesting session. Even I enjoyed myself. Thank you. Sandeep sir. So thank you so much for joining us. थैंक यू मैम. और जाते जाते मैं बच्चों को एक मैसेज देकर जाना चाहता हूँ. इवन सभी को मैं एक बात कहकर जाना चाहूंगा. द लास्ट मैसेज ऑफ माइन इज नेवर एवर बिलीव दोज प्रेडिक्शन व्हिच इज नॉट एम्पावरिंग यू. नेवर एवर बिलीव दोज प्रेडिक्शन व्हिच आर नॉट एम्पावरिंग यू. सिंपल. जो ऐसे कोई भी प्रेडिक्शन को कभी भी बिलीव मत करना जो आपको एम्पावर नहीं करती, जो आपको पावरफुल नहीं बनाती, जो आपको डिमिनिश करती है या आपको डाउन फील कराती है. नेवर एवर. कभी लोग कह देते हैं यार तुमसे कुछ नहीं होगा, मत मानो. कहो भाई हो सकता है आपने कुछ ना किया, मैं तो बहुत कुछ करूंगा. सो आप भले इसका जवाब मत दो, मन के अंदर ये दोहरा देना. मेरी तरफ से ये बात याद रखना. थैंक यू वेरी मच. साइनिंग ऑफ. गुड डे. हैव अ नाइस फ्यूचर एंड नाइस लाइफ. थैंक यू सो मच. Before we go, I've been seeing that a lot of amongst you have some queries regarding Camp Nasta exams and these workshops. So let me take few queries from you. So when you want to know when is the exam of Camp Nasta 2022 scheduled. So I would like to inform you that the tentative the month in which exam will be held, it will be in the month of either December or January. The dates are not announced yet. Once we have the dates, we will display it on the website as well. And we will send you mails and messages like we have been sending all the messages to you. हमारी हर वर्कशॉप आपके लिए कुछ नया लेकर आएगी, तो हमें जरूर फीडबैक में बताइए कि आपको और किस तरह की फीडबैक, किस तरह के सेशंस आप अटेंड करना चाहेंगे. हम आपके लिए क्या नया और लेकर आए, क्या आपको एक्साइट करता है, क्या आप जानना चाहते हैं, क्या आप लर्न करना चाहते हैं. तो विल ब्रिंग दैट वर्कशॉप फॉर यू, विल ब्रिंग दैट सेशन फॉर यू. इसके साथ साथ अगर आपने ये वर्कशॉप पूरी नहीं अटेंड करी है या कहीं कोई मिस हो गई है, तो आप इस वर्कशॉप को अपने लॉगिन के अंदर जूनियर साइंटिस्ट क्लब के सेक्शन के अंदर उसको दोबारा देख सकते हैं. ये कल से अवेलेबल हो जाएगी आपके लॉगिन के अंदर. जितने भी रिकॉर्डेड सेशंस हैं वो सारे आपके लॉगिन के अंदर अवेलेबल होंगे. आप उनको कभी भी जाके उनको देख सकते हैं. इसके साथ साथ वी हैव इंट्रोड्यूस्ड नॉलेज resources for you. So we are bringing journals, articles, magazines जो साइंस कम्युनिकेशन के बारे में है, जो बहुत सारी
ऐसी चीजों के बारे में हैं जो आपको नहीं पता, CSIR जिनके बारे में रिसर्च कर रही है, आप उनको सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आप अपने अगेन लॉगिन में जाकर नॉलेज रिसोर्सेज के अंदर जाके पॉडकास्ट हैं, मैगजीन हैं, आर्टिकल्स हैं, आप उनको एक्सेस जरूर करिए। न्यूज़लेटर है CSIR का, उसमें आप जाके पढ़िए कि क्या क्या नई नई इन्वेंशंस हो रही हैं या नई नई रिसर्च CSIR किन किन चीजों पे रिसर्च कर रहा है। सो इट विल कीप यू अपडेटेड। सो with this I would like to also inform you, like we were discussing before, आप लोगों को जान के ये बहुत खुशी होगी कि कैंप इस बार अपने जितने भी नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स हैं उनके लिए स्पॉन्सरशिप्स लेकर आ रहा है along with the awards. अवार्ड्स तो है ही, नेशनल टॉपर के लिए जूनियर साइंटिस्ट अवार्ड प्लस सर्टिफिकेट्स प्लस ये सब तो है ही, इसके साथ साथ स्कॉलरशिप्स यानी कैश प्राइसेस अनाउंस कर रहा है इस बार कैंप। सो जरूर अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए इसमें जरूर पार्टिसिपेट करें, इस तरह की वर्कशॉप्स उनको अटेंड करने को मिलेंगी ईयर लॉन्ग। प्लस वी हैव also we are arranging the visits for the previous toppers of 2019 and 20. So soon you will get the information from your school or from our end when this visit will be organized, kya program hai, kya itinerary hai. So you be prepared with that. And with this I am signing off. Thank you so much for attending this session, and over to you Vishakha for the vote of thanks. Good evening, everyone. I'm Vishakha, coordinator camp on behalf of camp team. I'm very thankful to be to all of you for being a part of this special session. And now we will end this session and we'll meet soon another next session. Thank you so much, everyone. Bye bye and take care. Thank you Vishakha. Thank you everyone.